Hello everyone, I'm Akanksha Parashar, host of this session. As we all know that we celebrated Women's Day last week, so this session is for women. Swasti Sukham Care Foundation, a national non-profit educational, charitable and human service organization rendering services and implementing projects in more than 8 states across the country. Founded on 9th of October 2018 as a dream of our parents to work for the society. The foundation is basically a group of women and girls from different states at pan India level joining hands together and transforming lives for nurturing future. So the founder of this Swasti Sukham NGO is Dr. Archana Gupta. She has done her MSc Food and Nutrition in Govind Ballabh Pant University, PhD Food Technology with Swami Vivekanand University, diabetes educator, IDF Hope certification. And she is also HOD Nutrition and Dietetics Department and consultant dietitian at Chandra Lakshmi Hospital, Vaishali, Ghaziabad. So, vision and mission of this work toward building healthier and resilient communities, a holistic and proactive approach of improvement in child nutrition, health, and education, improving the livelihood and the surrounding by enabling the care of Mother Earth. So, the area of work is menstrual health and hygiene, nutrition, naturopathy, yoga and meditation, counseling and training program, conserving nature, social awareness, preservation of culture and perspective, traditional knowledge, promotion of local language, special care for needs and differently abled. Work experience, corporate office, police force, hospital staff, university teacher and student, many NGOs and school children of rural and urban population, seminar, workshop, webinar, competition and one to more interactive sessions, online education, lectures since COVID period on different topics related with nutrition, health and menstrual health and hygiene. So today we have two speakers. One is dietitian Diksha from Delhi, pursuing PG from IGMPI, also having 2 years of experience in this field, worked with Fortis Hospital, Shalimar Bagh. And our second speaker is dietitian Parul Parashar. Dietitian Parul Parashar has a well-known dietitian having vast experience managing various lifestyle diseases. She is a nutritionist and wellness consultant with an experience of more than 10 years. Her thoughts and ideology are very positive. She is nature-loving person, strongly believes in Ayurveda along with nutrition science. She has great skills in field weight management and nutrition during pregnancy. Now I hand over it to dietitian Parul Parashar. Hello everyone. As you know, we celebrated Holi and Women's Day on the same day, 8th of March. As a woman, we consider many problems. Some are related to gynae, some are related to our lifestyle disorders. उन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में से ही आज हम एक सिंगल प्रॉब्लम या सिंगल डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होती हैं, जैसे कि थायराइड आपको हो सकता है, बीपी आपको हो सकता है और डायबिटीज भी आपको उन्हीं प्रॉब्लम से एक है। तो इसी डायबिटीज मेलाइटस को लेके आज हम एक सेशन लेके आए हैं। इसको हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और हम इसको कैसे बीट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं about what is diabetes. Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases in which there are high blood sugar levels over a prolonged period. Symptoms of high blood sugar include frequent urination, increased thirst, and increased hunger. डायबिटीज मेलाइटस में आपको बहुत टाइम तक आपका जो शुगर लेवल है वो हाई रहेगा
उसके साथ साथ आपको कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देंगे, लाइक आपको यूरिन बार बार आएगा, आपकी प्यास बढ़ेगी या आपको भूख ज्यादा लगेगी। सो ये सिम्टम्स हैं कि आपको हो सकता है डायबिटीज होने वाली है या हो चुकी है। नेक्स्ट, डायबिटीज होता क्यों है? Diabetes is due to either the pancreas not producing enough insulin or the cells of the body not responding properly to the insulin produced. तो ये वजह होती है कि पैनक्रियाज हमारी, जो कि इस इंसुलिन को सिक्रीट करती है, या तो वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं कर पा रही है या फिर बिल्कुल भी सिक्रीट नहीं कर रही है, तो को इंसुलिन हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है। या फिर एक रीजन ये है कि हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी की, वो इस इंसुलिन को प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज mellitus। 3 टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज result from the pancreas failure to produce enough insulin। टाइप 1 डायबिटीज क्यों होता है? जब हमारी पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है। दिस फॉर्म वाज प्रीवियसली रेफर्ड टू एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus और जुवेनाइल डायबिटीज। तो इसको हम क्या कहते हैं? आईडीडीएम और जुवेनाइल डायबिटीज इसको नाम दिया गया है। इसके रीजंस अननोन है, बट ये होता किस वजह से है कि हमारी जो पैनक्रियाज है वो फेल हो जाती है, प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं करती है इंसुलिन को। टाइप 2 डायबिटीज begins with insulin resistance, a condition in which cells fail to respond to insulin properly। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं वो प्रॉपर इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं करती हैं, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज होती है। दिस फॉर्म was previously referred to as non-insulin dependent diabetes mellitus। यानी कि इसमें आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है, या इसको हम कहते हैं NIDDM और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। द प्राइमरी कॉज इज एक्सेसिव बॉडी वेट एंड नॉट इनफ एक्सरसाइज। इसका प्राइमरी कॉज, सबसे पहला कॉज है कि आपका बॉडी वेट ज्यादा है या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज, इज द थर्ड मेन फॉर्म ऑफ एंड अकर्स इन प्रेग्नेंट वुमेन। जेस्टेशनल डायबिटीज किसमें होती है? प्रेग्नेंट वुमेन में होती है, विदाउट अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। जरूरी नहीं है कि आपको कोई पहले हिस्ट्री हो डायबिटीज की तभी आपको ये होगी, ये बिना किसी हिस्ट्री के भी आपको हो सकती है। अभी हमें डायबिटीज होने के बाद कंफर्म कैसे करना है? अगर हमें कुछ सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिख रहे हैं तो हमें कैसे कंफर्म करना है कि हमें डायबिटीज है? तो इसके कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं कि आप अपना ग्लूकोज या प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल आप चेक कराइए, जो कि ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है। तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज के लेवल्स हैं, अगर आपका 99 से बिलो आता है तो आप, या 100 से बिलो आता है तो आप क्या है? आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज नहीं है। बट 100 to 125 आता है तो आपको क्या है? आप प्री डायबिटिक है। और 125 से अबव जाता है तो आप क्या है? आपको प्रॉपर डायबिटीज हो चुकी है। नेक्स्ट है HbA1c। तो HbA1c में अगर आपकी रेंज 5 से कम है या 5 है या 5.6 तक भी है तो आपको नॉर्मल रेंज में माना जाता है, आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज नहीं है। बट अगर 5.7 to 6.4 है तो आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं, मींस आपकी डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे है, आपका शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पर है। नेक्स्ट, अगर आप 6.5 एंड अबव हो, आपका HbA1c है, तो आपको क्या है? आपको डायबिटीज हो चुकी है। इसी तरह एक और टेस्ट होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो 139 एंड बिलो है,
140 के नीचे है तो आप नॉर्मल है, आपकी रेंज नॉर्मल है, आपको डायबिटीज नहीं है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 140 टू 199 जाता है, मींस 200 तक जाता है, तो आपका क्या है, आप प्री डायबिटिक हैं। और 200 से अबव जाता है तो आप डायबिटिक हो चुके हैं। अभी डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हम किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं? तो देर आर 3 बेसिक स्टेप्स थ्रू वी कैन मेंटेन आवर डायबिटीज। फर्स्ट है प्रॉपर डाइट, सेकंड है एक्सरसाइज, एंड थर्ड रेगुलर मॉनिटरिंग एंड मेडिकेशन। तो रेगुलर मॉनिटरिंग अलग अलग लेवल्स के लिए, अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग तरीके से होती है। अगर आप टाइप 1 से आपको डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, तो आपका डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होता है, तभी आपको इंसुलिन दी जाती है। अगर आपका टाइप 2 है और आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो ज्यादा हाई नहीं है, तो आपको वीकली या मंथली मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ती है। अगर ज्यादा लेवल हाई है तो आपका डेली मॉनिटरिंग होती है। एंड देन मेडिकेशन, जो कि बहुत जरूरी है टाइम पे लेनी, और एडवाइस जैसे आपको डॉक्टर ने किया है। नेक्स्ट है डाइटरी गाइडलाइंस। तो फर्स्ट गाइडलाइन है हमारी मेंटेन आइडियल बॉडी वेट। सबसे पहले सारे डाइटिशियंस, सारे न्यूट्रिनिस्ट आपको यही बताएंगे कि आप अपना बॉडी वेट मेंटेन कीजिए। सिंपल कार्ब्स आपको लेने चाहिए, प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स से आपको लेना चाहिए। हम कई बार बोलते हैं कि रेड मीट नहीं लीजिए, या नॉन वेज प्रोडक्ट से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। अपने फैट्स एंड ऑयल को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। अपनी डाइट में फाइबर को इंक्रीज कीजिए। लाइक आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, सैलेड, होल पल्सेस, सीरियल्स एंड स्प्राउट्स। एक मील का एक फिक्स टाइम होना चाहिए, एंड मील का पोर्शन भी आपका फिक्स होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डायबिटिक पेशेंट को कभी भी अपना मील स्किप नहीं करना चाहिए, और फास्टिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है गो फॉर स्मॉल मील्स, यानी कि आपको 2.5 आवर में कुछ ना कुछ जो कि आपके लिए हेल्दी है, एडवाइस किया हुआ है डाइटिशियन ने, वो आपको खाते रहना चाहिए। नेक्स्ट है जो आज का हमारा सेशन है, जिस चीज को लेके कि हम अलग अलग स्टेट्स को लेके आज डिस्कस कर रहे हैं कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए वहाँ क्या क्या, किस टाइप की फूड हैबिट्स होती हैं, और हम उनको उन फूड से हमें क्या क्या मिलता है, डायबिटीज पेशेंट के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ नॉर्दर्न रीजन के बारे में, नॉर्दर्न स्टेट्स को लेके। नॉर्दर्न स्टेट्स में पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, जे-एंड-के, हरियाणा, ये सारे स्टेट्स, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स आते हैं नॉर्दर्न रीजन में। तो इन्हीं की फूड हैबिट्स को लेके हम आज डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए वहाँ फूड के क्या क्या ऑप्शंस हैं, और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना कितना है। यहाँ के जो जितने भी फूड हैबिट्स हैं, यानी कि फूड्स हैं, हेल्दी हैं, और डायबिटीज मिलाइटिस के लिए वो बहुत बेनिफिशियल्स हैं। वहाँ का इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, और साथ साथ ही ऑफ कोर्स दे हैव मेनी अदर हेल्थ बेनिफिट्स also, like they are rich in iron, calcium, potassium, magnesium and many other nutrients also. तो सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ही नहीं, बाकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और भी हैं जो यहाँ के रीजन्स में फूड्स में अवेलेबल है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ज्वार और बाजरा, यानी कि पॉजिटिव मिलेट्स जिनको हम बोलते हैं, उनकी रोटी। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका दिख रहा है आपको 54। अच्छा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ये एक रेटिंग सिस्टम है फूड्स का, कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का एक तरह से रेटिंग सिस्टम है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, वो ही अफेक्ट करता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई होता है इमिडिएटली। तो अगर जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा किसी भी फूड का, तो हमारा ब्लड शुगर लेवल उतना ही मेंटेन रहेगा। जैसे कि ज्वार या बाजरे की रोटी आप देख रहे हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 है, देन इट इज बेटर देन other like गेहूं and other foods. नेक्स्ट है चटपटा चावली एंड फ्रूट सैलेड।
तो चटपटा चावली फ्रूट सलाद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप देख रहे हैं 44। आप इसको एज ए स्नैक, एज ए ब्रेकफास्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूंग स्प्राउट एंड स्प्रिंग ऑनियन टिक्की। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 29 है। मूंग का तो सभी डाइटिशियंस आपको बताते हैं कि आपको मूंग, डायबिटीज अगर है तो आपको लेनी है। इसके साथ साथ इसके अदर हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, लाइक इसके अंदर आयरन रिच होता है, मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है। तो इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, लाइक स्प्राउट एंड अदर स्नैक्स। नेक्स्ट है ओट्स एंड ऑरेंज रबड़ी। ये भी डायबिटिक फ्रेंडली होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 एंड 52, अलग अलग ओट्स एंड ऑरेंज का। ओट्स रिच फाइबर होते हैं एंड इसका आपको अदर हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है। नेक्स्ट है दही भिंडी की सब्जी। नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप भिंडी की सब्जी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है और साथ साथ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 होता है। और दही का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी कम होता है, 28 होता है। एंड दही प्रोबायोटिक भी होती है, जो कि आपके अदर हेल्थ इश्यूज को भी बेनिफिट देता है, लाइक लिवर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दही को यूज कर सकते हैं। बट विदाउट फैट मिल्क हमें यूज करनी है। दही जो हमें बनानी है लो फैट मिल्क की बनानी है। नेक्स्ट है गेहूं की बीकानेरी खिचड़ी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कहीं इसको दलिया, खिचड़ी, बहुत फॉर्म में खाया जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 42 आप देख पा रहे हैं। सो इट इज वेरी बेनिफिशियल टू डायबिटिक पेशेंट्स। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सेशन का, फैक्ट्स और मिथ्स अबाउट डायबिटीज। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, तो आज हम कुछ फैक्ट्स एंड मिथ्स लेके आए हैं जिनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मिथ है, इफ यू हैव डायबिटीज यू शुड ओनली ईट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ स्टार्ची फूड्स सच एज ब्रेड, पोटैटोज एंड पास्ता। यस, starchy food are part of our healthy plan, but depends on portion size, especially for diabetes patient. डायबिटिक पेशेंट जितने भी होते हैं वो स्टार्ची फूड खा सकते हैं, बट एक स्मॉल अमाउंट में एक पोर्शन को डिसाइड करना होता है, और फॉर्म को भी मॉडरेट फॉर्म में आप ये चीजें ले सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट के साथ में। सो द की इज पोर्शंस। आपका पोर्शन पर डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर डेंजरस फॉर पीपल विथ डायबिटीज। फैक्ट है इसके लिए, artificial sweeteners are much sweeter than the equivalent amount of sugar, so it takes less of them to get the same sweetness found in sugar. So this is the can result in eating fewer calories than when you do use sugar. मीन कि अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे हैं तो आपका कैलोरी काउंट कम होगा। मीन्स कैसे, कि शुगर का आधा अमाउंट, जितनी स्वीटनेस शुगर एक चम्मच में देती है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं वो आपको हाफ से भी कम स्पून में आपको वो वही स्वीटनेस देते हैं। तो आपकी जो कैलोरीज होती हैं वो ऑलरेडी कट होती हैं, यानी कि आपका कैलोरीज इनटेक शुगर में ज्यादा होता है बट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में कम होता है। द अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन अप्रूव्स द यूज ऑफ सेवरल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इन डायबिटीज डाइट्स, लाइक सैकरिन, लाइक सुक्रालोज, लाइक एस्पार्टम। आप इन सारी चीजों का, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, fruit is a healthy food, therefore it is okay to eat as much of it as you wish. अभी फैक्ट है, fruit is definitely healthy food. It contains fiber and lots of vitamins and minerals. Because fruit contain carbohydrates, they need to be included in your meal plan. But it should be kept in your mind that fruits with complex carbohydrate like apple, guava should be given. And fruits with simple carbohydrates like banana, saputa should be restricted.
मीन्स आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले फ्रूट्स लेने हैं, जो कि कुछ ही फ्रूट्स होते हैं। ये हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ इनमें कार्ब्स भी होते हैं, जो कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि वही हमारे ब्लड शुगर लेवल को बूस्ट करते हैं। तो कुछ फ्रूट इसमें रिस्ट्रिक्टेड होते हैं एंड नो फ्रूट जूसेस शुड बी गिवन, स्पेशली प्रिजर्व फ्रूट जूसेस। नेक्स्ट मिथ है पीपल विद डायबिटीज शुड ईट स्पेशल डायबिटिक फूड। इसका फैक्ट हम जानेंगे अभी। A healthy meal plan for people with diabetes is generally the same as a healthy diet for anyone. Low in fat, especially saturated and trans fat. Moderate in salt and sugar, with meals based on whole grain foods, vegetables and fruit. मीन्स आपको एक हेल्दी प्लान, एक हेल्दी पर्सन की तरह आप प्लान ले सकते हैं, बट कुछ चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी, माइंड करनी पड़ेंगी। लाइक आपको अपना लो फैट डाइट लेनी है, स्पेशली सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट का ध्यान रखना है। मॉडरेट फॉर्म में सॉल्ट एंड शुगर आप ले सकते हैं। और मील में आपकी में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, होल ग्रेन बेस्ड होनी चाहिए मील आपकी, एंड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत ध्यान रखना है, वो आपकी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट है ईटिंग टू मच शुगर कॉजेज डायबिटीज। ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर आप ज्यादा शुगर लेंगे, अगर आप ज्यादा मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। ये नो इट डज नॉट, ऐसा नहीं होता है। टाइप 1 डायबिटीज इज कॉज्ड बाय जेनेटिक्स एंड अननोन फैक्टर्स दैट ट्रिगर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज। ये जेनेटिक होती है टाइप 1, और अननोन फैक्टर से ये ट्रिगर होती है। टाइप 2 डायबिटीज इज कॉज्ड बाय जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। जैसा कि अभी लास्ट पीछे भी हमने ये चीज पढ़ी थी या देखी थी कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टाइप 2 डायबिटीज को। बीइंग ओवरवेट डज इंक्रीज योर रिस्क फॉर डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, एंड अ डाइट इन हाई कैलोरीज whatever from sugar or from fat can contribute to weight gain। तो वेट गेन अगर हमारा होता है तो डायबिटीज की तरफ हम जा सकते हैं। और वेट गेन होने के कई रीजंस हो सकते हैं। आप कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं, चाहे वो शुगर से हो चाहे वो फैट से हो, जो कि वेट गेन के रीजन हो सकते हैं। इफ यू हैव a history of diabetes in your family, eating a healthy plan and regular exercise are recommended to manage योर वेट। अगर आपकी कोई हिस्ट्री रही है पास्ट में, फैमिली में किसी को डायबिटीज है, तो आपको डेफिनेटली अपने मील प्लान पे और अपने वेट को मेंटेन करना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। दिस इज फ्रॉम माई साइड। आई विश that I have gave most of information about diabetes, and especially for women, many things I consider in my session. Thank you.